Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed electric field due to a point charge and its vector form. Today we will discuss electric field due to system of charges. Suppose that we have n charges, let Q1 charge, Q2 charge and Qn charge. Suppose we want to find out the value of electric field at any point P due to all these charges, then we will use here the superposition principle. We will use superposition principle to find electric field at the point P due to all the charges. Now firstly we will discuss the diagram. Suppose we have Q1 charge which is present at the point A, Q2 charge at the point B. Similarly we have nth charge Qn at the point N. Let R1 is the distance of separation between A and P. Let R2 is the separation between B and P, and similarly Rn is the separation between N and P. Now we want to find out the value of the electric field at the point P. So according to the method which we have discussed in the last lecture, we will put our test charge at the point P. हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, दैट इज क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज. इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. एक तो ये टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, दूसरा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर. क्लियर. सो नाउ in order to find out the value of electric field at the point P, we suppose that E1 is the electric field due to the charge Q1. Similarly, E2 is the electric field due to the charge Q2, and En is the value of electric field at the point P due to the charge Qn. Are the electric fields कहाँ पे, at point P. Okay, so according to superposition principle, the total value of electric field at the point P, which is equal to the vector sum of all the electric fields E1, E2 and up to so on En due to these charges Q1, Q2 and up to so on Qn. If अगर हम ये वाली वैल्यूज अगर किसी तरीके से फाइंड आउट कर लें तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, विच इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. यहाँ पे लिख देते हैं P पॉइंट इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है. सो नाउ in order to find the direction of electric field E1, we suppose that all the charges are positive in nature, because if the charges are positive then their electric field is outwards. If the charges are negative then their electric field is inwards. यहाँ पे लिख देते हैं हम, if charge is positive, its electric field is outwards, but for negative charge its electric field is inwards. So direction of E1, E2 up to so on En depends upon the nature of charge.
अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसका फील्ड आउटवर्ड्स होगा, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उसका फील्ड इनवर्ड्स होगा। क्लियर? सो यहाँ पे आप लिख लेते हैं वैसे हम। सो अगर न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव दिया है, तो अकॉर्डिंगली हम उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। क्लियर? सपोज दिस चार्ज इज पॉजिटिव, सो इट्स फील्ड विल बी आउटवर्ड्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर। ओके, Q2 चार्ज हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड भी क्या होगा बेटा? आउटवर्ड होगा। सो दिस फील्ड इज अगेन आउटवर्ड्स। नाउ सिमिलरली Qn चार्ज भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड भी हमारा क्या हो गया? आउटवर्ड्स हो गया। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व ऑल द फॉर्मुलेशंस। फर्स्टली वी विल फाइंड आउट E1 वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। सो नाउ इट्स फॉर्मुलेशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू द चार्ज Q1। सो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? Q1 इंटू, नाउ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो डिस्टेंस इसमें कितना हो गया? AP स्क्वायर। ओके, so now we are writing here vector formulation. So we are writing here AP cap, where AP cap is a unit vector from A to P. Clear beta? So now we will multiply, हम इसको ऊपर भी AP से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी P से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू AP वेक्टर डिवाइडेड बाय AP क्यूब। ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस AP इज R1। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 cube into AP vector. Clear? Now we will write down E2. For E2, what we have? This is 1/4 pi epsilon naught. इसमें Q1 है चार्ज और इसमें फिर क्या चार्ज है? Q2। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? Q2। ये इवन A से P तक था, तो ये क्या आ जाएगा? B से P। सुनो, BP वेक्टर डिवाइडेड बाई BP क्यूब, और BP क्यूब हमारा क्या है? R2। And similarly for the nth term, I can write down its formulation is En vector, which is 1/4 pi epsilon naught Q into NP vector divided by this distance, which is Rn cube. Clear? So now put the values of E1, E2 and up to so on En in this equation. So we will write down here. So the total value of electric field at point P due to Q1, Q2 up to so on Q1, and this is how much? 1/4 pi epsilon naught Q1 into AP vector divided by R1 cube plus 1/4 pi epsilon naught Q2 into BP vector divided by R2 cube, and the last term is 1/4 pi epsilon naught Qn NP vector divided by Rn cube. Clear? So this is our answer for the electric field due to a system of charges. Now we will represent this value of electric field in terms of their position vectors, which is very, very important. So now we will solve for the electric field due to system of charges in terms of their position vectors. So now what we have, suppose this is our coordinate system, which is xy plane. So now let R1 vector is the position of a charge which is Q1. इसकी position हम suppose कर लेते हैं. Let the position is, the point is A. Let the point is A. ये हमारा origin हो गया, ये हमारा दूसरा charge हो गया. Let the charge is
Q2 present at the point B, and the position vector is R2 vector. Clear? So now this is our charge Q1, which is nth charge present at the point, let the point is N, at the position vector Rn vector. So now we will suppose a point where we have to find out the value of electric field. Let this is observation point P. P हमारा क्या हो गया बेटा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ओके, सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कहाँ पे करना है? ये वाला एट द पॉइंट P. किसकी वजह से? ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2 एंड अप टू सो ऑन Qn. वी विल derive the expression for electric field. Now, firstly, using the superposition principle, we know that the total electric field at point P is equal to the vector sum of all the electric fields E1 vector plus E2 vector up to so on En vector. अगर हम किसी मेथड से E1 वेक्टर, E2 वेक्टर एंड En वेक्टर निकाल लें तो हमने क्या करना है? यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देनी है एंड वी विल हैव द फॉर्मुलेशन फॉर E वेक्टर. क्लियर? सो नाउ फर्स्टली we will solve for E1 vector. So now what is E1 vector? E1 vector is the value of electric field. यहीं पे लिख देते हैं. E1 क्या है? Electric field due to Q1 at point P. तो E1 हमारा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे? P पॉइंट पे. किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से. सिमिलरली ये E2 क्या है? ड्यू टू Q2. और ये हमारा क्या है? ड्यू टू Qn. क्लियर? सो हमने ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है. क्लियर? सो नाउ एक चीज हम यहां पे लिखेंगे. लेट द पोजीशन vector of point P is R vector. जैसे हमने लिया है Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का R2, Qn चार्ज का Rn. सो ये पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट का भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा. लेट द पोजीशन वेक्टर इज दिस इज R वेक्टर. क्लियर? सो ये हमारा पॉइंट A, ये ओरिजिन और ये पॉइंट P. इसको ऐसे लिख लेते हैं. So this point is P. Okay. So now we will solve for E1 vector. So what is E1 vector? अभी हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज क्या हमारा? Q1. डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? A से लेके P तक. So I will write down distance AP square and direction क्या होगी? AP cap. Where AP unit vector is the unit vector from कहाँ से? A से लेके P तक का. क्लियर? सो नाउ अगर हम ऊपर भी AP से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी AP से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन क्या जाएगा? E1 वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 AP into AP cap. And this is AP raised to power 3. Clear? So now we know that AP vector क्या होता है हमारा? Magnitude and its direction. कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम उसको? Magnitude and multiplied by its direction. Clear? तो ये हमारा क्या बन गया? So this is 1/4 pi epsilon naught Q1 over AP cube into AP वेक्टर. क्लियर? सो ये आपको समझ आ गया. और अब हम AP वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे. ये AP वेक्टर है क्या? सो नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे बच्चों. +1 में हमने किया है. सो वी हैव 3 वेक्टर्स. दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OP वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर इज अवर AP वेक्टर. वो किस डायरेक्शन में होगा? A से लेके P में तक होगा. ठीक है?
So now in this triangle OAP we have two vectors, they are in the same order and एक वेक्टर ऐसा है जो opposite order में चल रहा है, वो कौन सा है देखते हैं. These two OA vector and AP vector are in the same order, but this third vector OP vector is in the opposite order. तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होता है वो रिजल्टेंट होता है. क्लियर. सो OP हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट, विच इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर. क्लियर. ये कहाँ से आया, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर. सो यहां से AP वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, which is equal to OP vector minus OA vector. So AP vector क्या बन गया हमारा, OP vector क्या है, this is OP vector which is R vector minus OA vector, this is R1 vector. तो OP vector हमारा AP vector हमारा क्या बन गया, R vector minus R1 vector. इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, पोजीशन A, और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, फोर्स लग कहाँ पे रही है, एट द पॉइंट P. सो ये हमारा सोर्स वेक्टर हो गया और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया. क्लियर. सो इसको ऐसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. क्लियर. सो नाउ यहाँ पे हमने AP की वैल्यू भी रखनी है, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड. सो इधर आ गया AP मॉड और दूसरी साइड आ गया हमारा R वेक्टर माइनस R1 मॉड. क्लियर. So now put the values in this equation. So values रख देते हैं इसकी. So values अगर रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1. AP वेक्टर हमारा क्या बन गया, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे AP क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर माइनस R1, उसका क्या आ गया, क्यूब. क्लियर. So now using the same methodology I can write down E2 vector. अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जिस तरह से हमने E1 लिखा है उसी को देख के हम E2 और En लिखेंगे. क्लियर. सो इसमें भी फैक्टर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें चार्ज है Q1. अब फील्ड किसके साथ निकाल रहे हैं, Q2 के साथ. तो अब क्या आएगा हमारे पास, Q2. क्लियर. उसमें हमारे पास वेक्टर आया था AP वेक्टर. अब वेक्टर क्या आएगा हमारा, ये B से लेके P तक का फील्ड है. सो नाउ फर्स्टली आई विल ड्रॉ इट्स डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड 2. नाउ वो वाला फोर्स हमारा लग रहा था A से लेके P तक, मतलब यहां से लेके यहां तक. अब फोर्स कहां पे लग रहा है, एट द पॉइंट P, बट किसकी वजह से, ड्यू टू द पॉइंट Q2 जो कहां पे है, एट द पॉइंट B. तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, BP वेक्टर. जो वेक्टर ऊपर है नीचे उसी का मैग्नीट्यूड है और उसकी क्यूब है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा BP मॉड r⁻3. क्लियर. और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इनटू. नाउ जब हमने AP वेक्टर लिखा तो हमने लिखा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. P का पोजीशन क्या है, R वेक्टर, A का पोजीशन है R1 वेक्टर. तो हमारा AP वेक्टर क्या बना, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये P हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं. सो BP and this is initial point, और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट. और वेक्टर लिखना कैसे है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. मतलब पहले P का वेक्टर वो क्या है हमारा R वेक्टर, और फिर बाद में इनिशियल वेक्टर वो क्या है हमारा B का, वो क्या है R2 वेक्टर. सो बन क्या गया हमारा यहाँ पे R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. सिंपल है, इसमें R माइनस R1, इसमें क्या आ गया R माइनस R2 आ गया. क्लियर. और नीचे इसका मॉडुलस, उसका फिर क्यूब. क्लियर. सो नाउ सिमिलरली वी विल राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर En वेक्टर. सो दिस इज नाउ वेरी सिंपल, जस्ट जनरलाइज करना है इसको. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें Q1 Q2 और इसमें Qn, उसमें R1 R2 और इसमें Rn.
So this is our final answer for En vector. Now I will put the values of E1, E2 and En in this equation. सभी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे. क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? So we will have E vector कहाँ पे? At point P. Okay. So now ये क्या बनेगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 R vector minus R1 vector mod of R minus R1 और उसका cube. And the next electric field is 1/4 pi epsilon naught Q2 R minus R2 divided by R minus R2 mod cube. Clear? So और the last component is generalizing कर देंगे nth term के लिए. So इसमें क्या आ जाएगा? Qn R vector minus Rn divided by R vector minus Rn mod cube. Clear? So now what we have, इसको हम summation form में भी लिख सकते हैं. Electric field at point P which is equal to, इन सब में से 1/4 pi epsilon naught क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. सो इसको बाहर लिख देंगे. क्लियर? समीशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Qn. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ith टर्म Qi. क्लियर? सो जो चीज़ रिपीट हो रही है मतलब सेम है उसको ऐसे लिख देंगे. जो चीज़ चेंज हो रही है उसको देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या बन रहा है. ठीक है? सो नाउ इस टर्म में हमारे पास क्या आ गया? R वेक्टर सेम है सभी टर्म्स में. यहाँ पे R1, R2 एंड Rn. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ri वेक्टर. ठीक है? जो चीज़ वेक्टर ऊपर है बेटा उसी का नीचे क्या है? मॉडुलस है. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसका क्यूब कर देंगे. ठीक है? सो ये समेशन चल रहा है फ्रॉम I वैल्यू 1 to n. तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज आवर आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n charges at the point P in terms of their position vectors. Now we will solve one numerical on the basis of superposition principle for the electric field. Suppose two charges of plus 8 microcoulomb and plus 12 microcoulomb separated by a distance of 4 centimeter. Find the net electric field at the midpoint. At their midpoint. Clear? So now what we have given. So दो चार्जेस हमें दिए हैं प्लस 8 माइक्रोकूलम और दूसरा 12 माइक्रोकूलम. क्लियर? सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 4 सेंटीमीटर एंड हमने क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. कहाँ पे? एट देयर मिड पॉइंट. क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव, डायग्राम बना लेते हैं पहले. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. यहाँ पे एक चार्ज है QA विच इज प्लस 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज है B which is plus 12 microcoulomb. Clear? So now let the distance between them is 4 centimeter which is 4 into 10 power minus 2 meter. Now we have to find out the value of electric field at the point O which is at the center of these two. Clear? Means this distance is 2 centimeter and this distance is again 2 centimeter. Okay, so now QA is how much? Plus 8 into 10 power minus 6 coulomb. QB is plus 12 into 10 power minus 6 coulomb. And now we have to find out the value of electric field at point O. Okay. Now in order to find out the value of net electric field at the point O, firstly we will check the direction of EA and EB.
Let EA is the electric field at point O due to QA. Similarly, we have EB. This is what electric field at the point O due to charge QB. Okay, now this charge is positive. It means that its field is outwards. So EA at the point O is outwards. Now again this charge is plus 12 माइक्रोकूलम. ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव दिया है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड्स एट द पॉइंट ओ. तो ये हमारा आ गया ई बी वेक्टर और वो हो गया हमारा ई ए वेक्टर. नाउ पहले हम ई ए और ई बी की वैल्यूज निकाल लेते हैं. सो ई ए क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कौन सा है, क्यू ए. डिस्टेंस कितना होगा, ए ओ स्क्वायर. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹. क्या हुआ है, चार्ज हमारा है 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय दिस OA डिस्टेंस इज हाउ मच, 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁻2 मीटर. क्लियर. सो नाउ EA इज 9 × 8/4 × 10⁻⁹ और ये हमारा हो गया 10⁻⁻4. ऊपर चला जाएगा 10⁻4. 9 और 4 13 और ये -6, तो हमारा बन गया 10⁻7 और ये हमारा कैंसिल हो गया 2. सो आंसर आ गया 18 × 10⁻7. ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट क्या हुई, और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर कूलम. क्लियर. हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स बाय चार्ज. ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम. सो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. क्लियर. सो नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EB विच इज ड्यू टू QB. सो इसका आंसर क्या आएगा, मैं सीधा ही सॉल्व कर लेता हूँ. 1/4 पाई एप्सिलॉन, चलो फार्मूला भी लिख देता हूँ, QB बाई, नाउ द डिस्टेंस इज हाउ मच, BO स्क्वायर. सो दिस इज 9 × 10⁻⁹. QB हमारा कितना है, 12 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हमारा अगेन 2 × 10⁻⁻2 2. क्लियर. सो ना पावर तो इतनी ही आ जाएगी इंटू 10⁻7, क्योंकि ये 4 है, 9 और 4 13 -6. सो ये हमारा आ गया +7. सो ये बनेगा 4 और ये है कैंसिल हो जाएगा 4. अभी 3 और 9 27. So we have this value of electric field at the point O due to the charge QB. Clear? So now we will solve for the net electric field. हमने क्या कर लिया, EA निकाल लिया. कितना आया हमारा 18 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम. और EB हमारा कितना आया 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम. क्लियर. सो EA इस डायरेक्शन में लग रहा है, EB एक इस डायरेक्शन में है. अगर दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, डिफरेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड एट पॉइंट O E net इज हाउ मच, जो इसमें से बड़ा वेक्टर है दैट इज EB वेक्टर माइनस EA वेक्टर. क्लियर. अगर डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है तो सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस मच इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच 27 × 10⁻7 माइनस ये वाला क्या है हमारा 18 × 10⁻7. सो E नेट हमारा कितना आ गया 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम. ओके. डायरेक्शन भी लिखनी है हमें. डायरेक्शन E नेट की, ये वाला वेक्टर ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज फ्रॉम O to A. O to A. क्लियर. सो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम. सो नाउ वी हैव, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
2 charges plus 25 microcoulomb and minus 9 microcoulomb separated by a distance of 4 centimeter. Find the position where net electric field is 0. क्लियर? सो इस न्यूमेरिकल में हमें बेटा क्या दिया है, हमें 2 चार्जेस दिए हैं, एक 25 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज हमारा -9 माइक्रोकूलम है. ठीक है. एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिट देम इज 4 सेंटीमीटर. सो हमने क्या करना है, एक पोजीशन फाइंड आउट करनी है. कहीं पे भी हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कितना लग रहा है, 0 लग रहा है. ठीक है. सुना, डायग्राम बनाते हैं पहले. लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. यहाँ पे चार्ज है हमारा QA और यहाँ पे चार्ज है QB. QA हमारा कितना है, 25 माइक्रोकूलम और है क्या, ये पॉजिटिव है. ठीक है. दूसरा चार्ज हमारा क्या है, -9 माइक्रोकूलम. क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. एंड उन्होंने डिस्टेंस हमें ये कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया. 4 सेंटीमीटर को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 10⁻² मीटर. क्लियर? सो नाउ हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होता है. ठीक है. हमें नहीं पता कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. सपोज यहाँ पे हमने P पॉइंट ले लिया. ठीक है. सीखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, EA इस तरफ होगा और B नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, तो वो नेट कैंसल रिजल्टेंट 0 पैदा नहीं कर सकते. इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं हो सकती. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हमें दिए हुए हैं तो P पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो उन दोनों के बीच नहीं हो सकता. ठीक है. सो नाउ हम इस तरफ को ले लेते हैं कोई पॉइंट P. ठीक, मैं लिख देता हूँ. P पॉइंट क्या है, पॉइंट P जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, 0. ठीक है. सो मैंने लिख दिया पॉइंट P क्या है हमारा, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. ठीक है. अब यहाँ पे चेक करते हैं. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, P पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा. ओके. सो नाउ ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स होगी. अब EA एंड EB की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी. अगर अपोजिट डायरेक्शंस यहाँ पे आ गई तो अब ये कैंसिल हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या होगी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए ये तभी कैंसिल हो सकती है. ठीक है. बट पॉसिबिलिटी है, तो हमने सपोज कर लिया. अब यहाँ पे पॉइंट P है which is at a distance x from the point B. Clear? Let point P is present at a distance x from, x मीटर लिख लेता हूँ, x मीटर from चार्ज -9 माइक्रोकूलम. क्लियर? मैंने ले लिया ये पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, QB चार्ज जो -9 माइक्रोकूलम है उससे x मीटर डिस्टेंस दूसरी तरफ ले लिया. ठीक है. सो नाउ डायरेक्शंस तो अब इनकी ऑपोजिट होगी, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, व्हेन EA एंड EB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर. ठीक है. फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net is 0, कंडीशन इज क्या होना चाहिए, EA एंड EB का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए.
अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसकी वैल्यूज ले लेते हैं हम। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्या हुए, कहाँ पे, पॉइंट P के ऊपर। सो ये बन के आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्या हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या आएगा, फ्रॉम A to P। सो डिस्टेंस इज AP square. Similarly, what is EV? This is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू B आएगा इसमें, क्योंकि ये चार्ज क्यू B की वजह से है, और डिस्टेंस इज हाउ मच, BP square. Clear? So now I will put the values of AP, BP and QA, QB and then we will solve this. Okay? So now what we have? ये हमारा कैंसिल ही हो गया। So now QA क्या है हमारा, 25 into 10⁻⁶ minus 6 divided by AP. AP is how much? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04, क्लियर, मीटर्स में, ठीक है। सो नाउ दिस इज 0.04 प्लस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्यू भी हमारा कितना है, 9 into 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज कैंसिल होगी, तो ये बन के आ गया 25/9 विच इज 0.04 प्लस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसको दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने से ये बन गया हमारा 5/3 विच इज इक्वल टू 0.04 प्लस x डिवाइडेड बाई x। बट यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों आ गए, ठीक है। एक बार इसको हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, दूसरी बार हम इसको नेगेटिव साइन से सॉल्व करेंगे, क्लियर। सो ये हमारा क्या बनेगा, देखो 5/3 which is equal to, by taking positive sign, this is 0.04 plus x by x. So now by cross multiplication 5x is equal to 3x plus 0.12. Okay, so now this is how much, 2x is 0.12 or x is 0.06। एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.06। दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन, तो उसको कैसे करना है देखते हैं। 5/3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.04 प्लस x divided by x. So now by cross multiplication we have 5x is equal to minus 3x minus 0.12. So this is 0.8x is equal to 0.12. तो इससे वैल्यू हमारी क्या आएगी, minus 0.12 by 8. Now this value is negative. If this value is negative means x is negative, which is not possible. ओके ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस आंसर इज 0.06 मीटर। इस तरह से बेटा हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो नाउ व्हाट वी हैव, 4 charges, 4 microcoulomb, -2 microcoulomb, +2 microcoulomb and -4 microcoulomb are present at the points A, B, C, D of a square, each of side 2/√2. Clear? So now electric field कहाँ पे find out करना हमने, center of square पे find out करना है। So क्या है हमारे पास, we have a square, ये point A, this is B, C and D। यहाँ पे चार्ज कितना है, 4 microcoulomb, this is -2 microcoulomb, this is +2 microcoulomb और ये हमारे पास है -4 microcoulomb, ठीक है। ईच साइड इज, सपोज A लिख लेते हैं और A की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2/√2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मिड पॉइंट पे, ये स्क्वायर का जो सेंटर होता है, लेट द पॉइंट इज O, इस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डिस्टेंसेस चाहिए। ये सारे डिस्टेंसेस कितने होंगे,
ये देखो ये ए है, ये ए है, और ये क्या होगा √2a। सो बी डी हमारी कितनी होगी √2a। ए की वैल्यू कितनी है 2√2। सो ये कितना हो गया 2√2। सो दिस इज बेसिकली 4। सो बी डी हमारा कितना आ गया 4। तो ये डिस्टेंस सभी कितने आ गए 2 2। सो ये डिस्टेंस 2 2 2 और ये भी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO। ये कितने आ गए हमारे 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। ओके, सो नाउ फर्स्टली दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा EA। दिस C चार्ज अगेन पॉजिटिव, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा EC होगा। B नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा टूवर्ड्स द चार्ज, और ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगा। क्लियर? सो हमें क्या पता लग रहा है EA और EC अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। EB और ED अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। तो लिख देते हैं EA एंड EC आर अपोजिट, similarly are opposite। पहले इनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EA। EA हमारा कितना आएगा 9 × 10⁹। चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये हमारा कितना है 2 × 10⁻² मीटर। सो ये हो गया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन कितना गया बच्चों 9 × 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये हमारा 10⁻9 10⁻⁻6 और ये हमारा ऊपर चला गया 10⁻4। ठीक है, सो ये 9 और ये 4 कितना आ गया हमारा 13 और ये हमारा कितना है -6। तो ये हमारा कितना आ गया, ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? सो नाउ EB फाइंड आउट करते हैं। EB कितना आएगा ड्यू टू -2 कूलम चार्ज 9 × 10⁻9 इंटू, अब नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 × 10⁻6 2 × 10⁻² स्क्वायर। सो ये कितना बन गया 9 × 2 डिवाइड बाई 4 × 10⁻7। क्लियर? सो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, फिर से ये आ गया, ये 2 से कट गया और ये हमारा आ गया 4.5 × 10⁻7। सिमिलरली EC, ये हमारा -2 की वजह से है, ये हमारा 2 की वजह से है। सो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी EB के बराबर ही आएगी, कितनी 4.5 × 10⁻7। सिमिलरली ED भी हमारा किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये भी 4 की वजह से है, ये भी 4 की। सो ED कितना आएगा EA के बराबर, विच इज 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? सो नाउ हमने चारों वैल्यूज निकाल ली। इसमें से हमने देखा EA विच इज 9 × 10⁻7, EC 4.5 × 10⁻7। तो इस तरफ ज़्यादा फील्ड है, इस तरफ कम है, तो नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। नाउ वी विल राइट डाउन हियर नेट फील्ड ऑफ EA and EC is along OC। तो होएगा कितना वो, सपोज उसका नाम हमने ER1 रख लिया। ER1 कितना होगा EA माइनस EC, क्योंकि EA हमारा बड़ा है, EC हमारा छोटा है। EA कितना आया हमारा 9 × 10⁻7 माइनस EC कितना आया 4.5 × 10⁻7। सो ER1 हमारा कितना आ गया 4.5 × 10⁻7। डायरेक्शन क्या आ गई अलोंग OC।
क्लियर? सो नाउ सिमिलरली ये वैल्यू हमारी कितनी आई 9 इंटू 10⁻⁷, ये कितनी आई 4.5 इंटू 10⁻⁷. सो नेट फील्ड ऑफ कौन से बच गए ई बी एंड ई डी इज अलोंग, ये ज़्यादा वैल्यू है ये कम है तो किसकी तरफ आएगा ये अलोंग ओ डी. लेट द वैल्यू इज ER2 विच इज इक्वल टू ई डी माइनस ई बी. ई डी हमारा कितना है 9 इंटू 10⁻⁷, ई बी हमारा कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁷. सो द वैल्यू इज 4.5 इंटू 10⁻⁷. और डायरेक्शन क्या बनी हमारी ओ डी. क्लियर बेटा? सो नाउ हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. एक वैल्यू आई हमारी ER1 की विच इज अलोंग ओ सी, तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट C, विच इज द डायरेक्शन ऑफ ER1. सेकेंड ER2 हमारा किस डायरेक्शन में है OD, इस डायरेक्शन में. सो ये हमारा क्या है OD पॉइंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ER2. सो नाउ बोथ द वैल्यूज आर सेम. ये भी हमारा कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ये भी हमारा कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम. नाउ वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, एक वेक्टर इधर को एक इधर को. सो मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट बिल्कुल उनके मिड में होगा. ठीक है? सो नाउ दिस डिस्टेंस इज, दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. ठीक है? सो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा ER, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट वाला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है A² B² प्लस 2AB cos of theta. So we will apply here ER1 square ER2 square plus 2 ER1 ER2 cos of theta. Now the theta angle is 90 degree. So cos 90 बेटा हमारा कितना होता है, cos 90 होता है हमारा 0. ठीक है? सो ये टर्म हमारी क्या होगी 0 होगी. So ER which is equal to this square plus this square, 4.5 into 10⁻⁷ whole square plus 4.5 into 10⁻⁷ whole square. क्लियर? सो ये डबल हो गया. डबल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अगर इसको सम करके देखें हम, so this value is ER which is equal to 2 into 4.5 into 10⁻⁷ plus 7 square. so ER मेरा कितना आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 4.5 into 10⁻⁷ into √2. √2 हमारा कितना होता है 1.41. so ER हमारा कितना आ गया 1.41 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम. क्लियर? सो नाउ इसकी वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर लेना. सो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया. नाउ इट्स डायरेक्शन. अगर एक वेक्टर इस तरफ को आया रिजल्टेंट ER1, दूसरा इसको इस तरफ को आया, तो ये डायरेक्शन होगी बिल्कुल इसके सेंटर में. क्लियर? सो इट्स डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं इसको, चाहे इसको बोल दो A से D की तरफ, चाहे बोल दो इसको B से C की तरफ. डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड इज अलोंग AD, और इसको क्या बोल सकते हैं अलोंग BC. क्लियर? सो हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर दिया और ये हमारी डायरेक्शन भी आ गई. तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करना. थैंक यू. और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना.